So now the next topic which we was going to see, the very most awaited topic, that was soil profile. I have been discussing this with you in previous when we have learned many sessions of soil and we have learned many more things of the soil. Okay, so let's give the new and the very important concept in the soil, that is soil profile. So, what is soil profile? Soil profile is basically an appearance of vertical section of soil in a vertically arranged downward manner. What did I said? जब भी हम soil देखते हैं या फिर upper surface of the earth देखते हैं ना, तो उसका जो arrangement होता है parent rock तक, कैसे वो अरेंज हुआ है, कितने लेयर्स फाइंड आउट होते हैं. बेसिकली ये एक टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हो, जिसमें हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन एंड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, और उसी को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं स्टडी एंड अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स एंड ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ अ सॉइल इन अ पर्टिकुलर मैनर, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल. और हर लेयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन. द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज हॉरिजॉन. समझ में आया? सो राइट द डेफिनेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, दैट इज द appearance of different layers of soil, different layers of soil superposed. Make sure the definition goes exact the way I'm teaching you. Okay, the appearance of different layers of soil superposed in vertical manner from the surface to the parent rock. What did I say? I said the appearance of different layers of soil superposed in vertical manner. Vertical manner means we are going in this way. From the surface to the bottom. समझ में आया? तो something हम लोग इस वे में हम लोग कुछ देखने वाले हैं, उसी को कैसा है, superposed in vertical manner. What do you mean by superposed? Superposed means arranged one above the other. Arranged above the other. This was called as what? Superposed in vertical manner from the surface towards the parent rock. To the parent rock, or you can also write it as towards. This is a surface. From the surface towards the parent rock. Towards the parent rock. This is the proper arrangement of the layers of a soil based on their properties, based on their constituents, and such phenomenal behavior is called as soil profile. समझ में आया? जो सॉइल हम देखते हैं ऑन दी अर्थ सरफेस, उसका डेप्थ में टू दी पेरेंट रॉक में उसका कितना लेयर है, उसके कितने हॉरिजॉन्स बनते हैं, वो कैसा है, वो स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल. देन कम्स द सॉइल प्रोफाइल कंटेन्स अ लेयर ऑफ, mark it or write it down, that now the next concept which we are going to see is the horizon. What it is? The horizon. The horizon. What is this horizon? I'll tell you. The arrangement of layers. Told you the arrangement of different layers based on the superposed in vertical manner is called as soil profile, and that too comes from the surface to the parent rock. इतना याद आया? कोई doubt? The horizon is arrangement of different layers. Those layers which are what kind of layers? Those layers which run vertically
downward and roughly parallel. Downward, vertically downward and roughly parallel. Roughly parallel. समझ में आया? ये वैसे लेयर्स हैं जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव होते हैं, प्लस ये दोनों रफली पैरेलल होते हैं किसके? टू दी सरफेस के. अभी आधी आधी कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा होगा, सोच रहे होगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. डायग्राम से समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. एंड व्हाट इज हॉरिजॉन, समझ में आया? पर ये डेफिनेशन लिख लो. These layers which run vertically downward and roughly parallel to the surface. These are roughly parallel to the surface and they are arranged based on their properties and constituents. Based on their arranged and they are arranged. They are arranged based on properties. Based on properties and constituents. Based on properties. लिखो. डायग्राम से समझते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन कहता क्या है. आई सेड, मैंने आपको दो चीजें बताई. डेफिनेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज द हॉरिजॉन. हॉरिजॉन मैंने आपको बताया कि दे आर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड दोस लेयर वो वैसे लेयर हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉइल से वेरी करते हैं, प्लस दे हैव अरेंज्ड इन देयर सेम जोन प्रॉपर्टी. और दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि दे हैव रफली पैरेलल टू द सरफेस. दे आर रफली पैरेलल टू द सरफेस. ये पॉइंट याद रखना बच्चों. अभी जब हम डायग्राम देखेंगे तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि मैं सॉइल हॉरिजॉन कहना क्या चाहती हूँ. समझ में आया? चलो देखते हैं. ये देखना बच्चों क्या होता है सॉइल प्रोफाइल. विल सी थ्रू डायग्राम. अर्थ सरफेस, यहां से हम नीचे आ रहे हैं पेरेंट रॉक तक. पेरेंट रॉक वहां होता है जहां से वेदरिंग चालू होती है. मैंने आपको सॉइल फॉर्मेशन में बताया था क्या होता है वेदरिंग, कैसे सॉइल बनता है. क्लियर? कैन यू सी? So I said now what is soil profile? ये हो गया हमारा सरफेस. ठीक है, सरफेस से एक जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन. This is our parent rock. This is what? Our parent रॉक. ये वैसा रॉक्स होते हैं जहां से वेदरिंग चालू होती है और सॉइल का फॉर्मेशन शुरू होता है. मैंने आपको ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में क्लियरली समझाया था. एलिवेशन ऑफ मिनरल्स, इल्यूवेशन ऑफ मिनरल्स, ह्यूमिफिकेशन, और फिर उसके पहला क्या था? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, फिर ह्यूमिफिकेशन, एलिवेशन, इल्यूवेशन. तो वो जो रॉक्स वेदर हो रहे थे वो कौन से रॉक्स थे? वो कौन से वाले रॉक्स थे? वो पेरेंट रॉक्स थे. समझ में आया आपको? कोई डाउट पूछ लेना. दिस इज आवर सरफेस. अगर ये सरफेस है, इफ दिस इज द सरफेस, इसका मतलब यहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा. कुछ प्लांट्स, कुछ बड़े बड़े ट्रीज होंगे जिनका जो रूट होगा वो डीपर तक जाएगा. क्या बताया मैंने ये चीज कि there are few small plants which have restricted roots till upper column. There are few big trees like banyan trees, other big trees. They have true roots mediated or given down to a long scrub areas or a long provisional areas where we are going downwards towards the parent rock. ये जोन में कुछ roots पाए जाएंगे क्योंकि इनकी टी ट्री कैसी है? बड़ी है. डीपर रूट्स प्रेजेंट होंगे. करेक्ट? चलो देन आई टेल यू. ये कुछ सरफेस प्लांट्स होंगे, ग्रासेस एंड ऑल, क्रीपर्स एंड ऑल, क्रॉलर्स प्लांट. ओके, plants which are arranged on the surface. क्योंकि I have to make you understand this diagram clearly, I have drawn each column in a broader way. ओके, ये जो है ना पूरा बच्चों
दिस इज एक्चुअल द सरफेस, ये जो आपका जोन दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअल सरफेस, बट क्योंकि हमें इसमें और दो पार्ट्स पढ़ने हैं एंड वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम इन सच अ वे. एनी डाउट डू आस्क बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो देन अगर मैं इसका एक्चुअल छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो इट लुक्स इन समथिंग दिस वे. रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो जोन होता है ना, फर्स्ट जोन, यही पूरा सरफेस होता है. क्योंकि इसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं, सो आई हैव ड्रूड यू इन दिस वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टू डिफरेंट जोन्स इन दिस जोन. ओके, चलो, सो इससे तो आपको क्लियर हो गया. और ये है हमारा सरफेस से जो वर्टिकल अरेंजमेंट पढ़ते हैं ना, अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल. याद करो डेफिनेशन बच्चों, क्या कहा था मैंने, वर्टिकली अरेंज, दिख रहा है वर्टिकली अरेंज्ड, क्लियर, वर्टिकली अरेंज डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू द पेरेंट रॉक. इसी अरेंजमेंट को, इसी लेयर ऑफ फिनोमेनल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल. अब समझ में आया डेफिनेशन डायग्राम के थ्रू? यस. और एक और चीज मैंने आपको बताई कि व्हाट इज हॉरिजॉन. हॉरिजॉन में मैंने आपको कहा कि those layers running roughly parallel to the surface, those layers running parallel to the surface, can you see, and those have different properties, उनकी अलग प्रॉपर्टीज है. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे पेरेंट रॉक है, यहाँ पे डीप ट्रीज के रूट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे स्मॉलर प्लांट्स के रूट पाए जाते हैं. समझ में आया हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड नाउ? विद अ डिफरेंट रूट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोज लेयर्स हैव बीन अरेंज्ड अगेन इन अ वर्टिकल मैनर. समझ में आया? एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज, समझ में आया? ये एक हॉरिजॉन है, ये एक हॉरिजॉन है, ये एक हॉरिजॉन है, ये एक हॉरिजॉन है. कोई डाउट? एनी डाउट डू आस्क मी. ओके, देयर आर टोटल basically 3 horizons present. Those horizons are horizon A, horizon A, horizon B, and horizon C. And the surface most horizon or the topmost horizon is called as O horizon, or it is also referred to as O or organic surface. क्यों मैंने आपको 3 horizon कहा और 1+1 कहा? Why? Because you always remember in the form of 3 basic, 1 plus 3 and 1 plus. Why 3 and 1 plus का combination? Why didn't I said you directly 4? Because जो surface होता है ना, वो basically उस पे क्या present होते हैं पता है? Dead organisms और organic matter ज़्यादा present होता है, like and remnants of plants, remnants of organisms, plants and other organic matters of animals, those are present on those surface. Organic चीजें यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ये जो surface पे है ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि you basically remember 3 horizon and including the top one, the +1 horizon, that is the surface horizon, referred to as horizon O. क्या रेफर किया है? horizon O. यहां तक कोई डाउट? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. समझ में आ रहा है? तो मैंने आपके 4 हॉरिजॉन हो गए, 3+1 का कॉम्बो, हॉरिजॉन A B C. ये है हमारा 3 हॉरिजॉन. +1 हॉरिजॉन कौन सा था? द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन व्हिच इज आल्सो रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन O. अब इसका फर्दर डिवीजन हम लोग देख लेते हैं. लेट्स सी. गॉट इट? समझ में आया? कोई डाउट? डू आस्क. ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि मैम हाउ मच layers of soil or how many horizon do a soil contain, you will always go for soil contains always 3 horizon, A B C. ये जो आपका O layer है ना, मैंने ये O layer जो आपको दिखाया है ना, that is layer, one topmost layer. कोई डाउट यहां तक? समझ में आया? तो जो सरफेस का जो हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है, इट इज नॉट अ हॉरिजॉन, इट इज अ लेयर. देन टू फ्यू बुक्स राइट इट एज 3+1 का कॉम्बिनेशन. यू ऑलवेज रिफर बुक हैज ऑल हैव टोटली 4 layers are present. Among that 3 is horizon and 1 that is the ऊपर वाला जो है वो क्या होता है? वो लेयर होता है. यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ये और पूरा जो लेयर 1 by 1 जिसको अरेंज करा है ना,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग हॉरिजॉन कहते हैं. क्लियर? लेयरिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देयर आर टोटल is called as horizon. There are total 3 horizons and plus 1, that is 1 is of what? 1 is of layer, that is topmost layer, which is mostly not considered to be as horizon as it contains decayed matter. ये मैं कब से चिल्ला रही हूँ, प्लीज याद रखना, ठीक है. चलो, सो जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट लेयर है ना, इसी को हम लोग O कहते हैं. एनी डाउट? प्लीज आस्क. उसके नीचे वाला जो लेयर है उसी को हम लोग हॉरिजॉन A कहते हैं. क्या कहते हैं? हॉरिजॉन. Comes the another horizon, that is horizon B. Horizon B. Then comes this next horizon, that is horizon C. Parent rock वाले areas जो होते हैं ना, इसी को हम लोग R zone भी बोलते हैं. R zone. Any doubt? Please ask. ठीक है? जो अपना O layer है, surface layer है, it is divided into 2 different layers, which is called as O1 and O2. Any doubt? Please ask. इनके बीच का डिफरेंस अभी हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या डिफरेंस प्रेजेंट होता है. ठीक है? Again, A is further divided into 3 different zones, which includes A1, A2, A3. Any doubt? समझ में आया? Again, B is further divided into B1, B2 and B3. Or the last one is our C horizon, where there is small weathered rocks are found. What rocks are found? Weathered rocks are found, which is only C. Whole section is only C horizon. No life or no plant or no animals can be seen in the C horizon. Right? Make a point and write it down that पहले horizon समझो, फिर उसके बाद एक एक के point wise हम लोग लिख लेंगे कि किसमें क्या होता है. Clear? C horizon का एक star point याद रखना. No life exists here. No life, plant or animals found here. Found here. Here मतलब कहाँ? C horizon की बात हो रही है. And it mostly consists of unweathered rocks. Mostly consists of minute, unweathered की जगह minute weathered, जो छोटे से little, बहुत ये parent rock है, बड़े बड़े rocks जहाँ present होते हैं उनको तोड़. weathering क्या बताया? breakdown of rocks बताया था, याद करो. जब वो रॉक्स टूट जाते हैं तो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये लिटिल वेदरिंग उसको बोलते हैं. तो यू कैन राइट इट एट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज minute weathered rocks are present. Minute weathered rocks are present. समझ में आया? कोई डाउट? सो पेरेंट रॉक क्लियर है, सी हॉरिजॉन क्लियर है. आइए देखते हैं ओ और ए और बी में क्या है. और ओ अगर आपसे कोई बोलते हॉरिजॉन, 4 हॉरिजॉन्स, बिल्कुल नहीं. यू गो विद ऑलवेज व्हाट आई हैव टॉट यू, गो विद दैट. 3 + 1 का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना है. 3 हॉरिजॉन्स होते हैं. ओ वाला क्या होता है? अपर लेयर होता है, सरफेस होता है. सम पीपल आल्सो रेफर टू एज हॉरिजॉन, बट इट इज नॉट एक्चुअली इन दैट वे. सो टोटली 3 + 1 4 जोन्स होते हैं. 4 हॉरिजॉन्स में क्लासिफाइड होता है. लेकिन देर अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आए कि हाउ मेनी हॉरिजॉन्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, यू विल ऑलवेज मार्क इट एज 3. नो डाउट, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट ऑफ डाउट. यू गो विथ 3. ओके, कम. सो आई टोल्ड यू O इज क्लासिफाइड इनटू O1 एंड O2. जो O1 है ना, उसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, लीव्स, एनिमल्स, लेफ्ट आउट पार्ट, रिमेनेंट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. ट्विग्स, ऑल दैट प्लांट का रिमेनेंट्स, लीफ, ट्विग्स, ऑल दैट organism remnant or all that animal remnant, organic matter are basically found in O1. क्वेश्चन आते हैं ऐसे, शीट पलटो समझ में आएगा. जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. O1 में कौन सी टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं? यू गो, नो डाउट, गिव इट एज ऑर्गेनिक मैटर. That's it. Why? क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सिंप्लीफाइड वे में पढ़ चुके हैं ये चीजें. नोट्स में, थियरीज में बहुत कुछ लिखा रहेगा. सिंपल एक लेयर याद रखो. O1 बोला तो ऑर्गेनिक मैटर, टिक 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 करना चाहिए. O1 बोले तो ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स ऑल. यू आर डन विद इट. ओके, चलो. O2 बोले तो यहाँ पे डीकंपोजर्स पाए जाते हैं. बोला
O1 में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। O2 में क्या होते हैं? Decomposers present होते हैं. Those decomposers which act on dead organism or remnant of the animal, which basically acts on the plant, which basically acts on the remnant organism and lead to formation. See, I'll tell you how. Organic matter O1 में, ठीक है? समझो बच्चों, ध्यान से इधर देखना. ऑर्गेनिक मैटर O1 में, उसके ऊपर क्या एक्ट करता है? डीकम्पोजर्स. After when decomposers act on it, it leads to formation of humus. It leads to formation of humus. समझ में आया? So what it forms? It basically forms humus. Any doubt? Please do ask. If you have any doubt, do ask me. मैं ये छोटा वाला डायग्राम मिटा देती हूँ because we have to write many more points. So समझ में आ रहा है कितने इजी वे में है? सो ह्यूमस समझ में आ गया. ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोजर्स उस पे एक्ट करके क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं. क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? चलो, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोजर्स उस पे एक्ट करके ह्यूमस बनाते हैं. जो अपना ए हॉरिजॉन है ना, उसी को हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल. बट ए हॉरिजॉन इज कॉल्ड एज टॉप सॉइल, टॉप मोस्ट सॉइल, और इसी को हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं. ये नाम याद रखना, क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही नाम दिखेंगे, ठीक है? ए हॉरिजॉन इज बेसिकली रिफर्ड टू एज टॉप सॉइल. क्लियर? एनी डाउट? सो जो A1 होता है ना, दिस इज बेसिकली रिच इन मिनरल्स. क्लियर? एनी डाउट? डू आस्क मी. मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत इजीली. इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों यहाँ पे मिनरल्स बहुत इजीली, बहुत वाइडली पाए जाते हैं? बिकॉज मिनरल्स, you can write it as roots of the smaller plant, extend to the topsoil, और topsoil हमने किसको कहा है? ए हॉरिजॉन को. अगर ये ग्रीन वाला पार्ट यहां नहीं दिख रहा है, so I'll tell you, क्या नहीं दिख रहा है, इट डजंट मीन दैट ये जो रूट्स है यहाँ पे A1 A2 में एक्सटेंडेड नहीं है, A2 A3 में. समझ में आया? ये पूरे A1 में एक्सटेंडेड होते हैं. किसके? रूट्स ऑफ स्मॉलर प्लांट हैव बीन एक्सटेंडेड टू द टॉप सॉइल. जब रूट्स वहां प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पे मिनरल्स प्रेजेंट होगा. देयर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फाइंग बैक्टीरिया. वो क्या करेंगे? लूजनिंग ऑफ सॉइल. तो वहां पे बेसिक आइडिया है, क्या प्रेजेंट होगा? मिनरल्स प्रेजेंट होगा. समझ में आया? प्लीज ये पॉइंट याद रखना. मैंने बहुत इजी वे में आपको ये क्लासिफाई करके मैं समझा रही हूँ, एंड नो अदर गो. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे. हॉरिजॉन ए इज आल्सो कॉल्ड एज टॉप सॉइल. हॉरिजॉन ए में A1 में क्या प्रेजेंट होता है? यू शुड से मिनरल प्लस ह्यूमस. फिर A2 और A3 की जब बात करें तो यहाँ पे एलिवेशन ऑफ क्ले मोस्टली पाया जाता है. वो बच्चों अभी याद रख लो ये पॉइंट. इसके बाद जस्ट हम हॉरिजॉन ए टॉपिक डालेंगे, फिर मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगी कि A1 A2 A3 का बेसिक डिफरेंस क्या होता है. समझ में आया? कोई डाउट? ओके, चलो. फिर B1 और B2 में क्या डिफरेंस? बी सॉइल, हॉरिजॉन बी और बी मोस्ट सॉइल इज कॉल्ड एज सब सॉइल. सब हॉरिजॉन बी के 3 पार्ट्स हैं, B1, B2, B3. ये मैं नोट्स लिखवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किसमें एलिवेशन होता है, किसमें इल्यूवेशन होता है. एलिवेशन बेसिकली ऊपर वाले सॉइल में होता है, दैट इज टॉप सॉइल. इल्यूवेशन बेसिकली B1, B2, B3 में होता है. और मैं आपको एलिवेशन और इल्यूवेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा चुकी हूँ. प्लीज अपने पन्ने पलटो और याद करो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट कम्स द सी जोन that I have told you already, basically minute weather rocks, and no life and no animals are found over here. समझ में आया? कोई doubt? No. Then I have told you the last one, the bigger rocks which are present at the last zone areas, they are called as what? Parent rock. What are they called as? They are called as parent rock. And this parent rock is also referred to as आर जोन. इसी को हम लोग आर जोन भी कहते हैं. यहां तक कोई डाउट? समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली कितने हॉरिजॉन्स होते हैं सॉइल के पास? 3 हॉरिजॉन्स होते हैं. +1 का कॉन्सेप्ट क्या है? +1 O
लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और 4 हॉरिजॉन्स, अगर क्लासिफिकेशन कितने होते हैं तो 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं हॉरिजॉन में। ये मैं शुरू से कहती हूँ, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉरिजॉन्स आर प्रेजेंट, कोई डाउट यहाँ तक? प्लीज आस्क, इफ नॉट प्लीज गिव द टॉपिक as the horizon O, or the first layer or the very top layer of the O or the soil surface, that is you can write it as O layer, or the first classification of your horizon, that is what? That is O. समझ में आया? तो आपके अगर आपसे कोई पूछे कि कितने हॉरिजॉन्स होते हैं सॉइल के पास, you will always go with answer 3 हॉरिजॉन्स। और O क्या होता है? O एक लेयर होता है, and this is the first layer of your horizon। समझ में आया? कोई डाउट? नो, गिव द टॉपिक एज ओ हॉरिजॉन। क्योंकि ये डायग्राम के बेसिस पे ही मैं आपको इसकी थियरी समझाऊंगी। मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल समझाया, मैंने आपको हॉरिजॉन समझाया, उसके O के O1 O2 है, A के A1 A2 A3 होते हैं, B के B1 B2 B3 होते हैं, C अकेला प्रेजेंट होता है, उसके बाद बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट रॉक, और उसी को हम लोग आर जोन भी कहते हैं। अब हम लोग लिख के पढ़ेंगे अच्छे से कि एक एक जोन में क्या क्या पाए जाते हैं और उसकी सॉइल कैसी होती है, और बेसिकली A1 A2 A3 में क्या डिफरेंस होता है, और क्या पॉइंट आपको याद रखना है। आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। चलो, आई एम रबिंग दिस डायग्राम, वी गोना राइट, वी आर गोना mark it by one. Come on. Now, give the heading as horizon, or you can write it as first horizon's layer, that is O layer, क्योंकि ये हमारा horizon नहीं होता, ये first horizonic layer होता है, जिसको हम लोग O layer भी बोलते हैं, and this is also referred to as organic layer. Organic layer, पहला point है, write it. It is also referred to as organic layer. It has 2 parts. It has 2 parts, which includes O1 and O2. O1 and O2. O1 में we found organic matter like plants, twigs, barks, trees, animals, remnant of animals. After dying, the left body of theirs, that is called as remnant of animals. समझ में आया? इतना तो मैंने आपको डायग्राम में ही बताया था। Any doubt? Write it. I am giving you in notes in a precise way so that you can help. This can help you even in your writing paper also. Okay? We found that here decomposers are present. Which decomposers are basically present here, which convert organic matter, बताया था मैंने ये आपको, बस हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, which converts organic matter into humus formation. ह्यूमस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। मैंने इससे पहले मैं आपको बताऊं कि O को ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, O1 O2। O1 को बेसिकली O1 में क्या पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, ट्विग्स, बग्स, डीके और अदर रिमेनेंट्स ऑफ एनिमल्स। O2 में क्या पाए जाते हैं, हियर डीकंपोजर्स। O1 लेयर लिख लेना, ठीक है, सो दैट इट विल मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड। चले बच्चों, चलो। Here decomposers are present which convert organic matter into humus. Humus are, what is humus? Humus is dark brown matter, decomposed matter, or you can write it as dark brown or dark black also. Dark black decomposed matter which percolates down, which goes down or percolates down. समझ में आया? कोई डाउट? See, dark decomposed black matter which percolates down with water and provides nutrients and provides excessive mineral exchange to the soil, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। Any doubt? No doubt? And this is O layer
it is present just above the topsoil, present above the top or true soil. Any doubt? Please ask. If not, then give the second heading of your horizon topic, which includes horizon A. So now give the heading as horizon A. Heading as horizon A. A is also called as topsoil. It is also called as topsoil. ये मैंने आपको बताया था डायग्राम में, याद आ रहा है? चलो, it is also called as topsoil. दूसरा पॉइंट इसके लिए बहुत ज्यादा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, that elevation. मैंने आपको बताया था एलिवेशन क्या होता है. एलिवेशन मींस लॉस ऑफ मिनरल्स और लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ सॉइल. पहला हमने देखा था ह्यूमस फॉर्मेशन, दूसरा देखा था एलिवेशन, तीसरा देखा था हमने क्या इल्यूवेशन एंड देन पेरेंट रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक. याद आया कॉन्सेप्ट, सॉइल का कॉन्सेप्ट याद करो बच्चों, जल्दी समझ में आया. प्रोसेस में पढ़ाया था मैंने ये सारी चीजें, ठीक है. तो ये हॉरिजॉन इसीलिए पढ़ा रही हूं मैं कि यू शुड रिमेंबर दोस थिंग्स एंड रिकलेक्ट ओवर हियर. एलिवेशन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, aluminium and some amount of sulfates, aluminium and some amount of sulfates are seen here, and clay is also lost. You can write it from this important point. And roots of smaller plants go on to the what? Go on to the A horizon. समझ में आया? मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि रूट्स ऑफ स्मॉलर प्लांट्स बेसिकली कम टू टॉप मोस्ट सॉइल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए जोन. इट हैज 3 टाइप्स जो कि हम लोग क्लियर हो चुके हैं. पहला पॉइंट जिसको हम लोग देखते हैं A1 में. A1 क्या होता है? A1 इज टॉप मोस्ट हॉरिजॉन present underneath O2. इसमें कोई डाउट? यहां तक तो समझ में ही आ जाना चाहिए आपको. O2 के जस्ट नीचे होता है. तो O2 में क्या हो रहा था? क्या रहा था O2 में? याद करो. बेसिकली व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस हो रहा था ना, ह्यूमिफिकेशन. याद आया? याद करो बच्चों, ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा था क्योंकि डीकंपोजर्स वहां प्रेजेंट थे. तो वो ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कर देता था? ह्यूमस में कर देता था. क्लियर? तो यहां पे क्या होता है कि टॉप मोस्ट हॉरिजॉन प्रेजेंट, पहले तो ये टॉप मोस्ट है प्रेजेंट अंदर O2 लेयर. एंड दूसरी चीज इसमें है कि टू बी डार्कर, seems to be darker A in all 3. अगर आपसे कोई पूछे कि in all 3 zones of A टॉप मोस्ट होता है. दूसरी चीज ये seems to be darker. क्यों ये डार्कर होता है? क्योंकि O2 में जब डार्क ह्यूमस पाए जाते हैं तो ये ह्यूमस जस्ट उसके नीचे थोड़े बहुत तो माइग्रेट होंगे ना, बताया तो था. दे परकुलेट विद द वाटर, दे गो डाउन विद द वाटर. सो उसका असर इसमें भी होता है, इसीलिए ये डार्कर होते हैं. एंड फ्यू मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. मिनरल्स ये डायग्राम में भी बताया था, पन्ने पलटो. मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट in this. नेक्स्ट डालो. A1 का तो क्लियर हो गया बच्चों. A2 देख लेते हैं. A2 जो होता है इट इज अ एलिवेशन लेयर. अब मैंने आपको बताया था कि A जोन में एलिवेशन होता है, लेकिन A जोन में अगर एलिवेशन होता है तो वो किस पार्ट में होता है? वो A2 जोन में होता है. समझ में आया? कितना इजी और कितनी सॉर्टिफाइड वे में हम लोग देख रहे हैं चीजें. चलो ध्यान दो. A2 is the zone where elevation of clay, iron and aluminium
excessive minerals from the soil occurs where? It occurs in A2 and it is the lighter zone. ये क्या था? डार्कर जोन था. A1 डार्कर है क्योंकि वो जस्ट O2 के नीचे है, ह्यूमस फॉर्मेशन के नीचे है. तो A2 कैसा हो जाएगा? It is the lighter zone. क्योंकि उसके बाद आया ना, तो सारे ह्यूमस के जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्कुलेट होते होते थोड़े से कम हो गए. समझ में आ रहे हैं बच्चों? याद रखो, डार्क डार्क, लाइट लाइट, ऐसे बढ़ते हैं आगे. ठीक है, चलो याद रखना ये पॉइंट याद रखना, इसमें टॉप मोस्ट याद रखना, और दूसरी चीज अंडरनीथ O2 याद रखना. ठीक है, चलो. और ये वाली जो डार्कर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये जो रेड मार्कर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. प्रेजेंट होता है क्या? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और वही मिनरल्स एलिवेट हो जाते हैं A2 जोन में जाने के बाद. कोई डाउट? समझ में आया? और रूट्स, ये जो वेरी वेरी स्टार कर लो इसको तो. ठीक है, रूट्स ऑफ स्मॉलर प्लांट्स गो ऑन टू दी ए जोन. जो छोटे छोटे प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो ए जोन पे आके एंड होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट कम्स A3 जोन, और A3 हॉरिजॉन भी लिख सकते हो आप लोग. इंटरमीडिएट, इट इज एन intermediate between, it is an intermediate between the A2 and B1, और इसी को हम लोग ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं. ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं. ठीक है, क्यों इसको ट्रांजिशनल जोन कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट लाइज बिटवीन A2 एंड B1. याद करो डायग्राम, ये वाला डायग्राम याद कर लो बच्चों, बहुत इजी होगा. जिसने डायग्राम समझ लिया ना उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. मैं तो इतना जानती हूँ, A1, A2, A3, B1, B2, B3, फिर हमारा C जोन, फिर हमारा R जोन. यहाँ पे क्या डाउट है? क्या बोला मैंने A3 के लिए? A3 किसके बीच में आया है? A2 और B1 के. क्लियर तो है बच्चों? ये देखो, चलो, A3 किसके बीच में है? A2 और B1 के. तो हो गया ना ये ट्रांजिशनल जोन. अब कितनी बातें इसके बारे में पढ़ोगे. एक और चीज लिख लो, लिखना है तो A2 और A3 जो है ना, वो A2 का भी कैरेक्टर दिखाता है और B1 का भी कैरेक्टर दिखाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल जोन. लिख लो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जिस लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, कि अगर आपसे कोई पूछे कि द फर्स्ट मोस्ट ट्रांजिशनल जोन टू ऑक्यूर इन योर सॉइल प्रोफाइल, सीधा आंख बंद करके A3 मार के घर आ जाना. ठीक है, रिस्क लेना ही मत. क्यों? क्योंकि इतने सिंपल वे में पढ़ाया, रट के पढ़वाया, डायग्राम से पढ़वाया. अब भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर ओके. चलो, सो A2, A3 जो है, A3 अगर पूछा कि पहला ट्रांजिशन जोन जो आता है ना A2 और B1 के बीच में, वो A3 है. क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे डार्कर जोन कौन सा होता है? अगर A जोन में पूछा तो A1 मार देना. सबसे लाइटर कौन सा होता है? तो A2 मार देना. एलिवेशन ऑफ क्ले पूछा, सीधा सीधा A2 मार के आ जाना. ये जोन्स याद रख लो, डायग्राम समझ लोगे, सब क्लियर है. डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से समझाया था. नोट्स में इसलिए लिखवाए ताकि थोड़ा इजी हो जाए बच्चों को रटने में. कुछ लोग होते हैं ना, रट के चीजें याद होती है. हाँ भाई, A2 बोला तो ये ऐसे ही पढ़ेंगे तो ही याद होगा. वो वाला फंडा तुम लोग लगा लेना. ठीक है, चलो अगला टॉपिक डालो. ऐसा ही हॉरिजॉन पढ़ लेते हैं, हॉरिजॉन B. पुट द टॉपिक एज हॉरिजॉन B. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, हॉरिजॉन B. तो हॉरिजॉन B बताया मैंने आपको. हॉरिजॉन B के जब मैंने बताया तो मैंने आपको बताया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बताया था? बताओ जल्दी जल्दी, चलो जवाब दो होशियार बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स. सबसॉइल बताया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबसॉइल. फिर उसके बाद हॉरिजॉन बी में मैंने आपको बताया कि दिस इज द जोन वेयर मैक्सिमम इल्यूवेशन होकर, वहां पे एलिवेशन हो रहा था, दैट इज लॉस्ट. प्रोसेस में जाके पन्ने पलटो. ठीक है, चलो. इल्यूवेशन में क्या होता है कि इल्यूवेशन में डिपॉजिट और अक्यूमुलेट होता है. अक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? अक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन, अक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम, अक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्साइड्स. चलो, इल्यूवेशन of clay
दैट इज accumulation. accumulation लिख लो, accumulation of clay, iron, aluminium, humus भी लिख लो, and humus are seen here. ठीक है, चलो यू नो व्हाट, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है, क्या लिख लो, कोटिंग ऑफ सिस्क्योक्साइड इम्पार्ट्स डार्क, ये जो कोटिंग है ना ऑक्साइड्स की कोटिंग, यहां पे बताइए देखो, इम्पार्ट्स सिस्क्योक्साइड्स की कोटिंग इम्पार्ट्स डार्कर कलर टू दी हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन को डार्कर कलर बनाती है। और ये कौन सा कलर अपियर हो जाता है, तो वो होता है रेड कलर। डार्क रेड कलर का जो अपियरेंस होता है ना, वो ये सॉइल में देखा जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड्स की सिसियोक्साइड्स की कोटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्साइड्स के सिसियोक्साइड्स की कोटिंग हो जाती है, विच इम्पार्ट्स डार्कर कलर टू द हॉरिजॉन। और वो कौन सा कलर आपको दिखता है? तो वो बेसिकली रेड कलर दिखता है। एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछो, और जरूर पूछो, ठीक है। चलो, पहला इसका जो लेयर है वो था B1, ठीक है। B1 भी बेटा ट्रांजिशनल जोन होगा। फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, फिर आप बोलोगे मैम डायग्राम दिखाओ। O1, O2, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C और जोन या पेरेंट चौक जोन। सो B1 किसका ट्रांजिशन होगा? टोटल ए का होगा भाई। देखो इधर बच्चों, टोटल ए का और ये बी का, समझ में आया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा B1। सो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन बिटवीन A एंड B। और ये ज्यादातर मोर likely to be seen as A। ये A1, ये देखो B1 है हमारा, ये इधर देखना, ठीक है। ये हमारा क्या है? B1 है। ये पूरा A है ना, और ये पूरा B है ना, इसका मिडिल लाइन क्या हो गया? इसका ट्रांजिशन ही हो गया। यही तो है हमारा B1। तो क्या हो गया? ये ट्रांजिशन जोन हो गया A और B का। और ये ज्यादातर A की क्वालिटीज दिखाता है। मोर लाइकली, यह लिखा है मैंने, मोर लाइकली टू बी सीन एज A देन B। समझ में? डायग्राम से समझो यार बच्चों, डायग्राम याद कर लोगे, सॉइल प्रोफाइल सबसे इजी कॉन्सेप्ट बन जाता है। समझ में आया? कुछ लोगों को डायग्राम्स में गड़बड़ हो जाती है, बार बार पीछे जाओ, वीडियो पॉज करो, फिर से देखो डायग्राम, फिर से समझो, अच्छा ये क्यों लिखवाया, ये क्यों बनाया इतना डायग्राम। कितने हो गए बच्चों? 3 3 6 7 8 9 10 तो चीजें याद रखनी है, उंगली पे रट लो। O1, O2, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C और R। खत्म कॉन्सेप्ट। O1, O2, B किसका ट्रांजिशन जोन किससे होगा? उंगलियों पे गिन लो, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो बचता है वो बन जाएगा अपना। सिंपल है कॉन्सेप्ट। ट्रांजिशन जोन याद करने की भी जरूरत है यहाँ पर। अब इसी में पूछ देगा आपको कि A और B का क्या कॉम्बिनेशन है, तो आप सीधा सीधा नहीं मारोगे भाई B1, और इसी की जगह लिख देना सेकेंड ट्रांजिशन जोन। फर्स्ट ट्रांजिशन जोन आपको बताया था इससे पहला यार, A3, A2 और B1 के बीच का था। अब B1 देख रहे हैं, ये हमारा सेकेंड ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। चलो दूसरा डालो B2, वेयर accumulation ऑफ, या फिर मैं एलिवेशन भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई के लिए एलिवेशन लिखा है। वेयर accumulation ऑफ clay, aluminium and iron
and iron is seen and it is dark red zone or dark red color, dark red zone, और इसी को हम लोग dark red color भी कहते हैं. Then comes, इसका एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जो ह्यूमस होता है ना वो वेरी 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 मच कॉन्सेंट्रेट होके कहाँ आता है, तो वो B2. मैंने आपको बताया ह्यूमस पानी के साथ बहकर यानी परकोलेट हो जाता है नीचे की ओर, तो वो किधर जाके सेटल होता है, इट गोस एंड सेटल विद B2. So humus mostly get settled to the B2. Get settled, लिख लो percolate, जो मन में आए वो लिख लो, पर सही जवाब होना चाहिए क्योंकि मतलब सही होना चाहिए. Get most settled to B2, और इसीलिए इसकी डार्कनेस बढ़ जाती है ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन से. समझ में आया? ह्यूमस यहाँ पे डिपॉजिट इतने अच्छे से होता है इसीलिए. ठीक है. नाउ कम्स लास्ट वाला B3. क्या लिख लोगे? B करें तो फिर आ जाता है ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट. अब देखो यहां पे C है, ये पूरा B है. बच्चों देखना, ये B था, ये C है. इनके बीच का जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा? B3 होगा. कोई डाउट? यहां वापस निकाल देती हूं, समझ लेना. ये देखो O1 O2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C R. अब देखो ये पूरा B है, ये पूरा C है. B3 क्या काम कर रहा है? ट्रांजिशन का काम कर रहा है ना. कोई डाउट? वही तो लिखने वाले हम बस. ये हमारा थर्ड ट्रांजिशन जोन हम पढ़ने वाले हैं. B3 इज ट्रांजिशन जोन between B and C. ये किसमें था बच्चों? Between A and B. ये किसमें है? Between B and C. वो किसमें था? O और A के बीच में था. समझ में आया? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज आवर थर्ड ट्रांजिशन जोन. थर्ड ट्रांजिशन जोन. दूसरा ये, पहला वो, तीसरा ये. क्लियर? चलो. एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो C है, क्या C का कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये कभी भी जब भी हम हॉरिजॉन पढ़ते हैं ना बच्चों, ये हमेशा ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज दिखाता है. अगर A3 अपना ट्रांजिशन जोन बना A और B के बीच का, तो A3 A की प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू B. वैसे ही अगर B3 हमारा ट्रांजिशन जोन बनता है तो वो किसका प्रॉपर्टी ज्यादातर दिखाएगा? वो B की प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाएगा देन दी C. और मैंने आपको ये चीज यहाँ लिखवाई भी है. अगर B1 हमारा ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन A एंड B का, तो मोर लाइकली इट इज सीन एज A. B1 इज मोर लाइकली टू सी एज A. दो चीजों का ट्रांजिशन जोन, दो के बीच में जो बीच वाला होगा वो ट्रांजिशन जोन, और वो हमेशा ऊपर वाली प्रॉपर्टी दिखाएगा. किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा? O2 O1 की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी दिखाएगा. A1 A2 की ज्यादातर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट. तो ऊपर वाला जो लेयर है ना, जो नीचे का लेयर है, वो हमेशा उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंटली दिखाता है. इतना याद रख लेना. ठीक है. एंड थर्ड ट्रांजिशन जोन मोर लाइकली टू बी एज B. ये ज्यादातर B की प्रॉपर्टी दिखाता है. नाउ गिव द हेडिंग एज लास्ट हॉरिजॉन, दैट इज हॉरिजॉन C. हॉरिजॉन C एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था. नो लाइफ एग्जिस्ट, नो, और ये लिख लो नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी. क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसीलिए ये पॉइंट लिखवा रही हूं. ठीक है. नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज सीन. किसमें? हॉरिजॉन C में. नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज सीन. किसमें? हॉरिजॉन C में. ठीक है. minute weathered rocks are seen. minute पढ़ा है मैंने डायग्राम्स में, जाके देखो. minute weathered rocks are seen. उसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है? सोलम. जो छोटे छोटे पेबल्स पाए जाते हैं ना, उसी को हम लोग सोलम रेफर्ड करते हैं. ठीक है. जो थोड़े बहुत नील पेबल्स, पत्थर जो होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों से बनते हैं फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, आगे के प्रोसेस के लिए, उसी को सोलम कहते हैं. एंड इट इज फॉर्मेशन ऑफ अंडरनीथ ऑफ A प्लस B. क्योंकि पूरा O गया, फिर A गया,
फिर बी गया प्लस फिर सी आया। सो इसी के लिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्रोसेस नहीं दिखता यहां पर। नो प्रोसेस ऑफ ए एंड बी इज सीन हियर, नो प्रोसेस ऑफ ए एंड बी इज सीन हियर, सीन हियर। एनी डाउट? बहुत इजी था सी वाला, तो कोई दो ही तो पॉइंट है, नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नो लाइफ एग्जिस्ट, माइन्यूट वेदर ड्रॉप्स को हम लोग सोलम कहते हैं, विच इज formed from parent rock, formed from parent rock। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना, जिससे छोटे छोटे पत्थर अराइज होते हैं, उसी को कहा है formed from parent rock। नो प्रोसेस, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर जो भी ए बी में ह्यूमिफिकेशन, एलिवेशन, इल्यूवेशन हो रहा था, यहाँ वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो लास्ट वाला जो अपना हॉरिजॉन है, या फिर उसको हम लोग हॉरिजॉन नहीं कहते क्योंकि हॉरिजॉन तो तीन ही है, एक हॉरिजॉन का लेयर है, समझ में आया बच्चों? तीन ही हॉरिजॉन होते हैं, उसके दो एक्स्ट्रा लेयर होते हैं, ओ और एक आर वाला अलग से पढ़ते हैं, जोन करते हैं, आर जोन, आर जोन। और पेरेंट, इसमें आप लिख लो पेरेंट रॉक आर प्रेजेंट हियर, पेरेंट रॉक आर प्रेजेंट हियर एंड नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ पत्थर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा होती है, एकदम नील होती है, और यहीं से सोलम अराइज होता है। सोलम क्या था, छोटे छोटे माइन्यूट पेबल्स रॉक। समझ में आया बच्चों? सॉइल प्रोफाइल का आपको एक समरी दे दूं मैं, तो मैंने आपको बताया व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, डेफिनेशन बताया, फिर डायग्राम्स में समझाया, ए बी सी तीन हॉरिजॉन्स होते हैं, प्लस वन ओ लेयर होता है, एक जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज आर जोन। तो हॉरिजॉन अगर कोई पूछे कितने होते हैं, तो तीन ही, ए बी एंड सी। फिर ए में कितने टाइप, ओ में कितने टाइप्स होते हैं, ओ लेयर के O1 O2। ए लेयर के कितने टाइप्स होते हैं, A1 A2 एंड A3। फिर बी के कितने लेयर्स के टाइप होते हैं, B1 B2 B3। सी अकेला होता है, आर जोन तो पेरेंट रॉक ही होते हैं जहां पे पेबल्स होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन से जोन में नहीं दिखाई देती, सी, आंख बंद करके मार देना, नो बेनिफिट ऑफ डाउट। बी में मैंने आपको बताया इल्यूवेशन होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम। समझ में आया? कोई डाउट? एक और चीज, अच्छी चीज, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सी हॉरिजॉन में सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। उसमें ऑक्साइड्स बताया था बच्चों, इसमें क्या होता है, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो फिर मैंने आपको बताया O1 में क्या होता था, ऑर्गेनिक मैटर, O2 में डीकंपोजिशन, ह्यूमस फॉर्मेशन, A1 में ह्यूमस फॉर्मेशन अलोंग विथ मिनरल्स, A2 में परकोलेशन, डार्कर एंड देन अगेन सेटलिंग डाउन। समझ में? लाइटर कलर याद करो आप लोग, ए का पन्ने पलटे, चलो जल्दी। बी बताया, फिर B1 B2 B3 सबके, इसमें क्या होता है, इल्यूवेशन, ठीक है। ए में क्या होता है, एलिवेशन, लॉस ऑफ क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम। सी में अकेला जोन होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, सल्फेट एंड कार्बोनेट्स। आर में क्या होता है, पेरेंट रॉक होते हैं जिससे से छोटे छोटे पेबल्स अराइज होते हैं फॉर वेदरिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्लियर? सॉइल कंप्लीट हो गया, पूरा सॉइल हमने अच्छे से देखा, डेप्थ में देखा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। सॉइल में मैंने आपको पढ़ाया what is process of formation of soil, what is pH required for formation of soil, what is constituent organic materials of soil. Then I have taught you types of soil seen all over the country, what kind of soil, laterite soil, red soil, black soil, green mountainous forest soil। फिर मैंने आपको बताया थे, याद करो, मैप में पढ़ाया था पूरा अच्छे से जोन, ठीक है। किधर लैटेराइट सॉइल किधर पाया जाता है, जवाब दो, चलो। एक ही स्टेट तो बताया था, मेघालय, फटाक से आंसर देना चाहिए, ठीक है। चलो फिर उसके बाद जो मैंने आपको एक अच्छी चीज बताई थी, एलुवियल सॉइल किधर पाए जाते हैं, किधर किधर, राजस्थान, देन कम्स व्हाट, कौन से स्टेट से, वो आसाम, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न स्टेट, ये सारे स्टेट में बताए थे आपको। ब्लैक सॉइल दो ही स्टेट्स में पाए जाते हैं, जल्दी बोलो, चलो फटाक से, कौन है वो होशियार, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यही दो स्टेट्स हैं जहां ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। तो ऐसे मैंने आपको स्टेट वाइज सॉइल्स, जहां जहां जो जो सॉइल्स बताए जाते हैं, वो भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा। एक टेराई सॉइल करके मैंने आपको बताया था कि वो कहां पाए जाते हैं, तो वो एक ब्यूटीफुल शॉर्ट टेराई रीजन ऑफ यूपी, सिर्फ वहां
पाए जाते हैं, समझ में आया? उसी को हम लोग कॉलिवियल सॉइल्स भी बोलते हैं, which are seen in the range of UP, which are migrated by what? Through wind. समझ में आया? कोई डाउट? तो फिर सॉइल का कॉन्सेप्ट यहाँ के खत्म होता है। फिर मैंने आपको पोर्स बताया था सॉइल में, व्हाट आर माइक्रोपोर्स, मेगापोर्स एंड स्पोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या टाइप ऑफ ग्रोथ दिखाते हैं ऑर्गेनिज्म सॉइल्स के, एंड वी कंक्लूडेड अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉइल। थैंक यू वेरी मच एंड डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड। क्रैश कोर्स वाले फटाक से देख लें और जो अगले साल देने वाले हैं वो ढंग से देखें, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।